आज हम लोग डीप ओशन करंट्स करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस करंट्स किया था, सरफेस ओशन करंट्स। आज हम लोग डीप ओशन करंट्स करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डीप ओशन करंट वर्क्स। सबसे पहला है कि वाटर करंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स। याद हमने पढ़ा था सरफेस वाटर एंड डेप्थ वाटर। Okay, so water currents beyond the depth of 500 meters are known as deep ocean currents. अगर क्वेश्चन आया आंसर in one or two sentence, what is deep ocean currents? The answer will be water current beyond the depth of 500 are known as deep ocean currents. अब है ना, these currents are formed by difference in temperature. जैसा surface ocean current है वैसे ही है. This currents are formed by the difference in temperature and density of the water in different parts, and this is known as thermohaline circulation. क्या बोलते हैं इसको? Thermohaline circulation. Thermo बोलेगा तो heat, haline बोलेगा तो salinity. Haline मतलब क्या है? When you measure salinity of the water, it is called as haline. तो thermohaline circulation बोलते हैं। और ये thermohaline circulation है ना, पूरे अर्थ पे होता है। Because of difference in temperature and density, there is a circulation formed in the ocean, that is in the depth of the ocean. और ये कुछ ऐसे दिखता है. If you see this image or this GIF properly, तो आपको दिखेगा. Can you see this? This is the thermohaline circulation which is moving in a circular manner. It is colliding and it is going back again. See, can you see the circulation? ये क्यों हो रहा है? Because of difference in temperature and difference in density. तो ये जो move हो रहा है ना, ये सब currents move हो रहे हैं. ठीक है, और इस सर्कुलेशन में मूव होते हैं, इसके लिए इसका नाम दिया है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. Everyone can see the PPT properly, right? Can you see the image properly, right? If yes, just reply me. Okay, thank you, Abdul. Yeah, चलो आगे बढ़ते हैं. इफ आपको पीपीटी या आपको इमेज नहीं दिख रहा है, सो प्लीज लॉग आउट एंड लॉग इन द बैक अगेन. ओके, so this is an example of thermohaline circulation. अगर क्वेश्चन है what is thermohaline circulation, these currents are formed by difference in temperature and density of the water in different parts of this ocean is known as thermohaline circulation. Please open your notebook and write this point. आज का डेट, चैप्टर का नाम और ये जो सेकंड पॉइंट है ये लिखो फटाफट. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ फटाफट लिखने के लिए. ओपन योर नोटबुक, राइट द डेट, राइट द नेम ऑफ द चैप्टर एंड राइट द सेकंड पॉइंट फटाफट. जब हो गया तो मुझे चैट पे बता देना कि आपका लिख के हो गया है. Okay, I hope everyone has written this point. Okay, so this is called as thermohaline circulation. And this thermohaline circulation is formed in every ocean which is there on the earth, that is Pacific, Atlantic, Arctic, Indian Ocean. सब ocean पे ये होता है. Okay, ये circulation because there is a difference in temperature and salinity and density. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now this currents flow and reaches the sea bed. हमने पढ़ा था ना ओशन बेड, ओशन फ्लोर, चैप्टर नंबर 4 में.
तो ये ओशन फ्लोर में पहुंचता है एंड इट फ्लोज लाइक अ रिवर कंटिन्यूसली, मतलब ये ना डीप वाटर में ये ना, ये जो करंट है ना, इट मूव्स कंटिन्यूसली एंड एट अ गुड स्पीड। इट लुक्स लाइक अ रिवर इज फ्लोइंग इनसाइड द वाटर, ठीक है, इट फ्लोज लाइक अ रिवर। रिवर कैसे देखो, रिवर कभी, if you see, I will give an example of river. A river never stops flowing, ठीक है। तो जैसा रिवर कंटिन्यूसली फ्लो होता है, तो ये करंट भी जो है ना, ये ओशन करंट जो डीप वाटर में है, जिसको हम लोग डीप वाटर ओशन करंट बोलते हैं, ये भी कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है, लाइक अ रिवर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, if you talk about deep ocean currents, warm water has less salinity. याद रखना, ये भी बाद में लिखना है। Warm water has less salinity and density. Such water comes up on the surface. अब कैसे है कि पानी अगर हल्का रहेगा तो वो सरफेस पे आएगा, ठीक है। पानी अगर हल्का रहेगा तो जस्ट अ सेकेंड किड्स। ओके, अभी पानी अगर, जब पानी में सैलिनिटी कम रहेगा और पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो पानी हल्का हो जाता है और वो पानी सरफेस पे आ जाता है, इट इज सरफेस वाटर, ठीक है। एंड इफ द वाटर इज कोल्ड, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर गोज एंड हॉट वाटर, दैट इज वार्म वाटर, कम्स अप, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी एंड मोर डेंसिटी। एंड दिस मूवमेंट कॉजेज द डीप सी वाटर करंट, मतलब इससे डीप सी वाटर करंट फॉर्म होता है। ये इमेज आपका टेक्स्ट बुक का इमेज है, इसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में देखो 0 डिग्री दिया है, दैट इज द इक्वेटर। 90 डिग्री नॉर्थ दिया है, 90 डिग्री साउथ दिया है, और आप देख रहे हो तो रेड कलर में जो है वो वार्म करंट है और जो ब्लू में दिया है वो कोल्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो कोल्ड करंट नॉर्थ से साउथ जा रहा है और वार्म करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। और ये प्रोसेस जब चालू रहता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, और ये प्रोसेस जब कंटिन्यूस होता है, इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ डीप ओशन करंट्स। इट रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ डीप ओशन करंट्स, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है ये भी लिख लेना फटाफट अपने बुक में। व्हाट इज द कॉज ऑफ डीप ओशन करंट? ओके, डन हो गया। ओके, अब इसका है ना एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो मूवमेंट है वार्म करंट और कोल्ड करंट का, ये एक जगह पे होता है, देयर इज अ प्लेस वेयर दिस मूवमेंट हैपेंस, ठीक है। लेट अस सी दैट एग्जांपल। अभी मैं वो पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जनरली द सरफेस वाटर नियर ग्रीनलैंड, नाउ ग्रीनलैंड इज अ प्लेस इन यूरोप, ग्रीनलैंड इन यूरोप मूव्स टू more depths, and this water moves to the Antarctica at this depth, ठीक है। Later the water moves to the surface and thus the redistribution of ocean water keeps occurring, and this redistribution takes around 500 years, मतलब ये जो redistribution का process है इसको 500 साल लगता है। and this type of movement is known as conveyor belt। मैंने conveyor belt का आपको देखो बाजू में इमेज दिया है, आपने ये conveyor belt अपने एयरपोर्ट में भी देखा रहेगा, लगेज में यूज होता है लगेज के लिए, आपने देखा रहेगा ये।
तो ये जो कन्वेयर बेल्ट आपको दिख रहा है ना, सेम वैसे ही है ना, ये ओशन करंट्स का सर्कुलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो वार्म वाटर है वो ऊपर चला जाता है और कोल्ड वाटर नीचे जाता है, फिर वापस वार्म वाटर ऊपर जाता है, कोल्ड वाटर नीचे जाता है, मतलब ये सर्कुलेशन होते ही रहता है लाइक अ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। तो दिस पिक्चर डिपिक्ट्स एन एग्जांपल ऑफ कन्वेयर बेल्ट। उन्होंने एग्जांपल दिया ग्रीन लाइन। ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा किड्स, थैंक यू। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेयर बेल्ट, ओके। तो ये एग्जांपल दिया उन्होंने कि वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स कैसे एक्चुअली मूव होते हैं डीप ओशन में, इसके जैसा मूव होता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। या नाउ व्हाट इज अ गायर, ठीक है, GYRE। ये है ना आपके टेक्स्ट बुक में एक पिंक कलर का बॉक्स है, डू यू नो करके, लास्ट में उसमें ये दिया गया है। व्हाट इज अ गायर? This circular pattern of the movement of the ocean currents give rise to a certain peculiar features in the ocean। मतलब ये जो सर्कुलर पैटर्न है, जो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स का, एक पेक्युलर फीचर को बर्थ देता है, ठीक है, ठीक है, जनरेट करता है। और ये जो पेक्युलर फीचर जो ओशन में दिखता है ना, दे आर कॉल्ड एज गायर। नाउ दिस गायर is commonly found over here. The Sargasso Sea in the Atlantic Ocean is such an example, and it is marked by the circular pattern of ocean currents. It does not have land boundaries and is only surrounded by ocean currents, and it gets its name from the Sargasso, that is Sargassum seaweed. Seaweed क्या होता है मालूम है क्या? The weeds, ठीक है, the plants which grow in the sea, ठीक है, विच इज ऑफ नो यूज, बीड्स आर ऑफ नो यूज। जो बीड्स ग्रो होता है ना, इट अफेक्ट्स द सॉइल, तो होता है तो उसको हम लोग बीड बोलते हैं, बट जब वो सी बेड पे ग्रो होता है तो उसको सी वीड बोलते हैं, ठीक है। तो सी वीड एंड द वाटर इज स्टिल हियर, दिस सी this sea is 100, that is 1100 किलोमीटर वाइड एंड 3200 किलोमीटर लॉन्ग। ये गायर कैसे मूव होता है ना, उसका मैं आपको इमेज बताऊं कि गायर कैसे फॉर्म होता है और दिखता कैसे है, तो आपको समझ में आएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गायर, कैन यू सी दिस? राइट में आपको दिख रहा है। तो ये जो गायर है वो ऐसे मूव होता है, ठीक है। दिस इज अ पेक्युलर फीचर विच इज ऑब्जर्व्ड इन सरगासो, दैट इज सरगासम सी, ठीक है। And this is not good for transportation. Yeah, it looks like a cyclone, but ये पानी के डेप्थ में होता है, और अगर ये रहेगा तो आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट सर्वाइव ओवर देयर, ओके। सो दिस वाज अबाउट गायर। आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी एक टॉपिक अपना बचा है जो हम लोग टेक्स्ट बुक से करने वाले हैं। सो आई बी ओपनिंग द PDF ऑफ टेक्स्ट बुक, ताकि आपको टेक्स्ट बुक से हम लोग वो कर सके, ओके। कैन यू सी द टेक्स्ट बुक ना एवरीवन? या अभी अपना इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट्स बचा हुआ है, वो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है डीप ओशन करंट्स, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट पढ़ते हैं। ड्यू टू द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जो हम लोगों ने इनिशियली पढ़ा था, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, movement of sea water ocean occurs on a large scale because of this circulation. Ocean water moves from the surface to the bottom and from bottom to the surface, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि सरफेस वाटर बॉटम में जाता है और बॉटम का जो पानी है वो सरफेस पे आता है। अब जब ये प्रोसेस हो रहा है ना, बॉटम का पानी सरफेस पे आ रहा है, सरफेस का पानी बॉटम में जा रहा है, इससे क्या होता है ना कि वार्म वाटर इज ट्रांसफर्ड to the bottom, the surface, and the nutrients, that is nutrient rich cold water is circulated to the surface। मतलब जो सरफेस का जो डेप्थ का जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो ऊपर आ जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूट्रिएंट्स आर
कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन। ठीक है, इसमें मिनरल्स भी होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच विल अट्रैक्ट द फिशेस। मिनरल्स, आप लोग, आपको मिनरल्स मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं जिससे फिशेस को भी फायदा होता है और ह्यूमन लाइफ को भी फायदा होता है। ठीक है, इफ यू इमेजिन, अगर ये डीप करंट जो नीचे का जो है, कोल्ड करंट्स अगर ऊपर नहीं आता था और वार्म करंट्स नीचे नहीं जाता था, ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स कभी ऊपर आते ही नहीं थे। ठीक है, एंड ह्यूमंस एंड फिश विल बी डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अभी न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इवन सॉल्ट, अभी सॉल्ट पानी में कैसे आता है, उसका एक रीजन है। जो ओशन बेड होता है ना, सी का ओशन बेड, वो ओशन बेड में ना एक एक मिनरल होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम सॉल्ट। समझा? अभी वो ओशन बेड से सरफेस तक कैसे आता है, बिकॉज ऑफ दिस करंट। ठीक है, वो ओशन बेड से सरफेस तक कैसे आता है, बिकॉज ऑफ दिस करंट। और इसके लिए सरफेस वाटर में सॉल्ट आता है, और वही सॉल्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वही सॉल्ट को प्रोसेस करके हम लोग कंज्यूम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर ये करंट्स नहीं होता था तो नीचे का जो सी बेड का मैग्नीशियम सॉल्ट है वो कभी ऊपर तक आता ही नहीं था, वो नीचे ही रहता था। ठीक है, और हम लोग ये सॉल्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते थे। या डेड सी हैज लॉट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इट हैज 10 टाइम्स मोर देन एवरेज। इट हैज 332 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, एवरेज सॉल्ट एक ओशन में 37 ही होना चाहिए, बट डेड सी में इट इज 332। ठीक है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज डेड सी, बिकॉज देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट सी। ठीक है, सर्वाइव नहीं होता। फिश अगर आया वहां पे तो इट डाइज बिकॉज ऑफ द एक्सेस सॉल्ट इन द वाटर। ठीक है, और इतना सॉल्ट है इसके लिए आप कभी डूबेंगे नहीं। दिस इज अ फैक्ट ऑफ डेड सी। ठीक है, डेड सी में कैसे है कि अगर आप कूदेंगे तो आप फ्लोट होगे, आपको स्विमिंग का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना सॉल्ट है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेड सी। यस, देयर उधर इफ यू गो टू डेड सी, वहां पे सॉल्ट पैक्स नहीं, वहां पे तो पानी में सॉल्ट के फिलर्स भी है। ठीक है, उधर इतना सॉल्ट जमा हो गया कि वहां पे सॉल्ट का पिलर भी दिखेगा आपको, इतना सॉल्ट है वहां पे। ओके, तो ये डू यू नो किया था हमने। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर करते हैं, ये जो ग्रीन बॉक्स है, लेट अस रीड दैट आल्सो। पहला पॉइंट है, द ओशन करंट डू नॉट फ्लो वेरी क्लोज टू द कोस्ट। सबसे पहला पॉइंट, तो अगर आप बीच पे जाके खड़े हो और वहां पे ओशन करंट ढूंढ रहे हो तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, द ओशन करंट डज नॉट is not found near the sea coast. Next one is they flow near the lower limit of continental shelf. ठीक है, even though the velocity of the ocean current is less, the water carried by them is immense. ठीक है, the volume of the water carried by ocean current is immense, भले उसका स्पीड कम हो। Next one is under the influence of the westerlies. Westerlies is a type of winds which flows from west to east. That's why they are called as westerlies. Westerlies in the mid latitude, the ocean currents flow from west to east, but near the equator they flow from east to west, and this leads to circular pattern. See in figure 5.4 जो हमने पहले वाला देखा था। ठीक है, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर टाइप ऑफ विंड्स। ठीक है, दे आर द नेम ऑफ द विंड्स। ओके, सो वेस्टर्लीज दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्टर्लीज दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर अभी आपको कोई डाउट है ये चैप्टर रिलेटेड तो अभी फटाफट पूछ लीजिए, कोई भी टॉपिक का डाउट है। Dead Sea is not in Mumbai. Dead Sea is in located near Jordan. Jordan is a country. वहाँ पे located है। मीनिंग ऑफ सैलिनिटी, गुड क्वेश्चन। सैलिनिटी का मतलब क्या है कि एक पानी में कितना सॉल्ट कंटेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। समझा? मतलब पानी में कितना सॉल्ट कंटेंट होता है उसको बोलते हैं सैलिनिटी।
गायर का इफेक्ट कुछ नहीं है. गायर मतलब क्या है? इट इंक्रीजेस द सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट्स विच इज गुड फॉर द मरीन लाइफ. लेकिन वहां पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट सेफ ओवर देयर. ठीक है. Yes, Gaia is lethal. It is dangerous. और कोई डाउट्स फटाफट. गायर इज यूजफुल फॉर मरीन लाइफ बिकॉज अगर सर्कुलेशन होगा ओशन करेंट्स में तो सर्कुलेशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स यहाँ से वहाँ मूव होंगे. फिशेस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इवन द ग्रोथ ऑफ प्लांट विल बी मोर बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स. तो उससे उससे क्या होता है कि मरीन लाइफ जो होता है वो हेल्दी रहता है. अगर ओशन करंट्स मूव नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा, तो मरीन लाइफ एक ही जगह पे सेटल हो जाएगा, दूसरी जगह पे रहेगा ही नहीं. Because of this continuous movement of ocean currents, so the marine life is getting the nutrients, the food for the fishes available easily because of this circular movement. ठीक है. चलो टेस्ट बैक क्वेश्चंस थोड़ा सॉल्व करते हैं. ठीक है. इफ यू सी द टेस्ट बैक क्वेश्चंस यहाँ पे ही है. सबसे पहला क्वेश्चन है, चलो फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चंस का. सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ओशन डज द लैब्राडोर करंट फ्लो. क्या बात है. सबसे पहला आंसर है ओमकार से, दैट इज अटलांटिक ओशन. आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन कर लो फटाफट. या चलो सेकंड क्वेश्चन है, विच करंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन द इंडियन ओशन. कौन सा करंट है. अटलांटिक ओशन होता है. नॉर्थ एंड साउथ सिर्फ डायरेक्शन है, तो आप अटलांटिक ओशन लिखेंगे तो भी चलेगा. यस, द करेक्ट आंसर इज सोमाली करंट. विच फैक्टर out of the following does not affect the region along the coast. Yes, the answer is salinity. Which of the following occurs in the area where the cold and warm current meets? Thick fog, absolutely correct. The answer is thick fog. Which of these following currents flow from the northern polar regions up to Antarctica? Surface ocean currents. Okay. चलो नेक्स्ट इज एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट, इज इट करेक्ट और रॉन्ग. तो आपने को बताना है कि करेक्ट है कि रॉन्ग है. तो पहला वाला है, ओशन करंट्स गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वेलोसिटी टू द वाटर. रॉन्ग. करेक्ट. द आंसर इज रॉन्ग. द डीप ओशन करंट्स फ्लो विथ हाई वेलोसिटी. रॉन्ग.
Generally, surface ocean currents are formed in equatorial region. Correct. Correct. And the last one is, sorry, the second last one is ocean currents hold great importance for human life. The answer is correct. The movement of icebergs is not dangerous for water transport. The answer is wrong. It is dangerous for water transport. And the next one is the movement of, sorry, water becomes warm near Brazil due to ocean currents. On the other hand, it becomes cold near African coast. Is it correct or wrong? The answer is wrong. Okay. तो हम लोग यहाँ पे ये लेक्चर एंड करते हैं. अभी आपका साइंस लेक्चर है, सो विल वेट फॉर साइंस लेक्चर टू स्टार्ट. आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन ओवर हियर. Yeah. We'll wait for your science teacher to come and then we'll start.